Hello dear student, I welcome you all once again in concrete technology subject, that is your subject code is 1615305 as you can see here, and we are going to see properties of concrete, that is unit number 3. In this properties of concrete, this is lecture number 8. My name is Daniel Swami. I am lecturer of Gems Polytechnic College in Civil Department, Aurangabad, Bihar. Let us see the content of the lecture. As you can see here, in properties of concrete, we will study about fresh concrete and hardened concrete. Now we are discussing about fresh concrete. In last lecture I have thought about the test of workability, test about slump cone and compaction factor. Again today we will see in fresh concrete, and as today in this lecture we will see the properties of fresh concrete. In fresh concrete we will see VB test and flow table test, and these two tests we will study today. Let us see what is VB consistometer test. Workability of concrete is a complex properties of concrete. As we know, the workability of concrete is a complex properties of concrete. जो workability है वो डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो पे, and for finding the workability of concrete involving various parameter, as workability depends upon the stability and the mobility and the compactability, placeability, फिनिशिंग एबिलिटी ऑफ कंक्रीट. जो वर्कबिलिटी है वो डिपेंड करता है किस पे, कौन सा पैरामीटर पे जो वर्कबिलिटी डिपेंड करता है उसका स्टेबिलिटी पे, मोबिलिटी पे, कॉम्पैक्टेबिलिटी पे और प्लेस एबिलिटी पे, फिनिशिंग एबिलिटी पे. ये सारा जो है पैरामीटर्स है उसी पे डिपेंड करता है वर्कबिलिटी. ईच टेस्ट हैज़ देयर इम्पॉर्टेंट and there is no unique test to be measure the workability of concrete in a total. वहाँ पे अभी कोई सा भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा यूनिक टेस्ट नहीं है जो टेस्ट करके हम वर्कबिलिटी को, मतलब कंक्रीट का वर्कबिलिटी को प्रॉपरली हम चेक कर सकें. VB consistometer test determines the mobility for some extent of compactability of concrete. जो VB consistometer जो है टेस्ट, ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है मोबिलिटी को, और सम एक्सटेंट तक ये कॉम्पैक्टेबिलिटी जो है कंक्रीट का कॉम्पैक्टेबिलिटी है उसको मतलब फाइंड करने में, डिटरमाइन करने में मदद करता है. लेट अस सी अबाउट दिस. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ VB consistometer? VB consistometer test is named after the developer of V. Brahmer of Sweden, and it is discovered by IS 119 in 1959. In this test, we measure the relative effect led by a concrete to change from one definite shape to another definite shape by conducting vibration in a conical or to be in cylindrical. ये टेस्ट जो होता है वो मेजर करता है रिलेटिव इफेक्ट को, कंक्रीट को, जो वो अपना शेप में चेंज आए कब, अगर हम वाइब्रेशन डालते हैं तब. दिस इफेक्ट इज़ नोन एज रिमोल्डिंग इफेक्ट एंड इट इज़ मेजर्ड इन T सेकेंड. मतलब कितना टाइम पीरियड उसमें लगता है उसके अनुसार से, और जो रिमोल्ड होता है उसके अनुसार से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, VB सेकेंड. The time taken by the concrete to undergo a complete remolding is determined as measure of workability of concrete as shown in VB seconds. हम लोग VB seconds में उसका workability of concrete का हम ले सकते हैं, और हम जो रिमोल्ड करते हैं उससे हमको पता चलेगा. This test is usually performed on a dry concrete and it is not suitable for a wet concrete. जो ये टेस्ट परफॉर्म होता है वो ड्राई कंक्रीट के लिए होता है, ना कि वेट कंक्रीट के लिए होता है. कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू मोर देन 50 mm रिमोल्डिंग क्विकर वेयर मेजरिंग द टाइम इज़ इम्पॉसिबल. जो टाइम जो मेजर करते हैं, अगर हम स्लम्प को, जो कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू होता है 50 mm से, अगर उसका रिमोल्डिंग क्विकर है तो हम लोग टाइम पीरियड हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं.
Let us see what are the apparatus used in VB consistometer test. The apparatus consists of VB testing machine, tampering rod of diameter 20 mm and the length of 500 mm, cylindrical container, trowels, stopwatch. These are the instrument we will use in VB consistometer test. इन वीबी टेस्ट मशीन, जो वीबी टेस्टिंग मशीन में जो काम होता है उसके बारे में देखेंगे. वीबी टेस्ट machine consists of vibrating table which is molded on an elastic support. The vibrator is operated electrically and the length and the width of the vibrating table are 380 mm and 260 mm. On the surface of the vibrating table, the cylindrical container has the height is attached using the wing nuts. Slump cone and the cylindrical jar is placed as shown in figure. As you can see here, it is shown in figure. This is vibrating machine and this is VB consistometer test. In this the concrete will be filled and this glass plate will be placed above this and then the vibration will be taken place. Then the cylindrical container is screwed to be vibrating table through a wing nut. The slump cone height of 300 is open on the both side and has a diameter of 200 mm at the bottom and had 100 mm at the top. जो मतलब स्लम्प कोन का है उसका मतलब बॉटम में 200 mm का बॉटम होता है जो उसका डायमीटर होता है और मतलब 100 mm का उसका टॉप का डायमीटर होता है और वो टोटल हाइट होता है 300 mm का. The slump cone is inserted into a cylindrical container to be perform the test. जो स्लम्प कोन है वो सिलेंडर में डाला हुआ रहता है और वो सिलेंड्रिकल कोन में डाला हुआ रहता है और वो जब अटैच हो जाता है विंग नट से ये वीबी टेस्टिंग मशीन में जब हो जाता है और वाइब्रेशन होता है उसे हम लोग उसका टेस्ट को टेस्ट करते हैं. एज यू कैन सी इन दिस इमेज द होल अरेंजमेंट is molded on the stud base shown in figure. As you can see the basement of the VB testing machine. The bottom base consists of swelling arm, straddle arm holding where the straddle arm is fixed to the funnel and guided cells are shown in this figure. These guided cells are shown in this figure. As you can see, a graded rod which have a scale is used to measure the workability of a sample. A graded rod is fixed to a swell arms. As you can see, this is the swell arms through the guided sleeves, and the graded rod has provisions for screwing the transplanting disc. ये जो है मतलब इसको हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं ये डिस्क को और ये डिस्क को हम लोग इसके ऊपर ला के हम लोग इसको टाइट कर देते हैं और उसके बाद जब ये घूमता है इसको हम लोग हिला सकते हैं. तो ये हम लोग इसका ये स्लम्प कोन में हम लोग कंक्रीट को भर के हम लोग उसको टैंपरिंग रॉड से टैंपर करने के बाद उसको हम लोग वाइब्रेट करते हैं और कितना सेटल होता है और वीबी मशीन में हम लोग इसके बारे में लोग टेस्ट करते हैं. और जो वीबी मशीन यही टेस्ट करता है कि उसका मोबिलिटी और वर्कबिलिटी किस तरह का है, वो कंक्रीट का मोबिलिटी और वर्कबिलिटी, और ये दोनों चीज़ डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो के अनुसार से. और अभी देखेंगे द डिटेल अबाउट VB टेस्टिंग मशीन. एज यू कैन सी दिस इज़ द गाइडेड स्लीव्स हियर जो हम उसको ढीला और टाइट कर सकते हैं. और ये जो है होता है ट्रांसपेरेंट डिस्क होता है डायमीटर ऑफ 230 mm और ये होता है ग्रेजुएटेड रॉड ये. और दिस इज़ द राइट पार्ट कैन बी रोटेटेड, दिस कैन बी रोटेटेड. ये जो होता है घूमता है ये. सो हम लोग इसको मतलब किसी साइड में घुमा सकते हैं. ये मतलब मशीन का बेसमेंट है.
ये है स्टॉल आर्म होल्डिंग, ये पूरा होल्ड करके रखता है। और देख सकते हैं कि इसका मतलब जो कोन का हाइट होता है वो 350 mm होता है, उसका टॉप अपर डाया होता है उसका 100 होता है, और लोअर डाया होता है उसका 200 होता है स्लम कोन का। और सिलेंड्रिकल कंटेनर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, फनल जो है इसके ऊपर ला के प्लेस किया जाएगा। और ये है वाइब्रेटिंग टेबल, उसका मतलब जो लेंथ बाई विड्थ होता है वो 380 mm बाई 360 mm होता है। और ये विंग नट में जो स्लम कोन है यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। ये है आपका वीबी कंसिस्टोमीटर। Let us see the procedure how we will do the test. Insert the slump cone in attached with a cylindrical container. As you can see, fill the concrete sample in a cone in a 4 layer. Each layer should be 1/4 of its height of slump cone and tempered with a tampering rod of 25 stroke each. After tampering the top layer, struck off the concrete which is with a trowel, making the cone in a correctly filled। जो होता है जिस तरह से स्लम कोन को हम लोग करते हैं तो स्लम कोन में हम लोग करेक्टली फिल करके हम लोग हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब हम लोग वो जिस तरह से इमेज में आपको हम बताए थे कि ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसके अंदर में स्लम कोन डालते हैं। तो स्लम कोन डालने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद 25 स्ट्रोक डालते हैं हर लेयर पे, और उसको कॉम्पैक्ट करने के बाद ऊपर वाले लेयर को हम लोग करनी से उसको हम लोग बराबर कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर फिनिश लगे और करेक्ट प्रोपोर्शन में फिल्ड लगे। आफ्टर फिलिंग द कॉन्क्रीट इन ए स्लम कोन, द ट्रांसपेरेंट ग्लास इज अटैच्ड टू ए स्वेलिंग आर्म। स्वेल आर्म is moved and placed on the top surface of the concrete and noted the reading for a graduated scale as shown in initial reading। जो ये है इसमें क्या करते हैं कि ये ग्लास प्लेट में ये इसमें हम ग्लास प्लेट अटैच कर देते हैं। ये है स्विंगिंग रॉड स्वेल आर्म जो मतलब सबको पकड़ के रखता है, और ये ग्लास प्लेट को हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लास प्लेट को हम यहाँ पे लाके प्लेस कर दिए हैं, और ये जो है ये स्केल में हम लोग मेजर कर ले रहे हैं कि कितना मतलब उसका इनिशियल रीडिंग है। द रीडिंग फ्रॉम द ग्रेजुएटेड स्केल, ये जो स्केल है इसमें हम लोग को पता चल जाएगा। एंड देन रिमूव द कोन स्लोली इन ए वर्टिकल डायरेक्शन एंड वेट until the concrete settles in a new position. After moving the swell arm and place it on the lower of the concrete for a final reading and note it the final reading। जो स्लम कोन है मतलब वो सिलेंडर के अंदर अगर जब हम स्लम कोन को निकालते हैं और उसके ऊपर डिस्क रहता है जो हम लोग को इनिशियल रीडिंग दे देता है, और जब सेटल डाउन होता है कितना वो डिफरेंट शेप में हो जाता है, और जहाँ पे हमारा ग्लास डिस्क है वो ट्रांसपेरेंट डिस्क अगर वहाँ रखा हुआ रहता है जो पोजीशन पे पहुँच पाता है उसको हम फाइनल मतलब रीडिंग लेते हैं। तो हम लोग को स्लम वैल्यू इसको पता करने के लिए इनिशियल रीडिंग माइनस फाइनल रीडिंग कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना उसका स्लम वैल्यू था। नाउ द स्विच ऑन द वाइब्रेटर एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच। द वाइब्रेटर इज कंटिन्यू अंटिल द कॉन्क्रीट इज होली रिमोल्डेड, that is the surface become horizontal and the whole concrete surface adhere uniformly to the transparent disc, and the time required to complete the remolding in a seconds is recorded। हम लोग मतलब वो वाइब्रेटिंग मशीन को चालू कर देंगे और जब तक उसका ग्लास प्लेट पूरा उसमें चपक ना जाए और पूरा उसके ग्लास प्लेट में पता जो सीमेंट पे से वो लग ना जाए, उससे हमको पता चल जाएगा कि वो पूरा कॉम्पैक्टेड हो गया। और वो जो टाइम है उसको हम लोग सेकेंड्स में रीड करते हैं स्टॉप वॉच के अनुसार से। नोट द टाइम टेकन ऑफ द कॉन्क्रीट टू बी हॉरिजॉन्टल एज अ वीबी सेकेंड, उसको हम लोग वीबी सेकेंड कहते हैं। तो इसके अनुसार से इसी के अनुसार से हमारा जो प्रोसीजर है वीबी कंसिस्टोमीटर का हम लोग ख़त्म होता है, और इसी तरह से हम लोग वर्कबिलिटी चेक कर सकते हैं और उसका मोबिलिटी चेक कर सकते हैं कि मतलब कंक्रीट का मोबिलिटी और उसका वर्कबिलिटी किस तरह का है, वो मतलब प्रॉपर फॉर्म में सेटल होता है कि नहीं, और उसका कॉम्पैक्शन करने के बाद वो मतलब एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर मोल्ड होता है कि नहीं। ये है वीबी कंसिस्टोमीटर।
Next is flow table test. Flow table test is nothing about, it is also an important test for a concrete, and it also check the workability of concrete, determining the examination of flowing properties of concrete. ये जो फ्लो टेबल है, इसका नाम से ही पता चलता है, ये टेस्ट है वो मतलब कंक्रीट कितना दूर फैलता है अगर वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर हो, और जब वो टेबल वाइब्रेट करता है और कितना दूर तक फैलता है, वो फैलने के अनुसार से ये फ्लो टेबल टेस्ट हम लोग चेक करते हैं, उसका वर्कबिलिटी और फ्लोइंग प्रॉपर्टी किसका, कंक्रीट का. Flow table test of concrete is also determine the quality of concrete and concerning its consistency, cohesiveness and the proneness of segregation. अगर उसमें मतलब अगर प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो सेग्रीट हो जाएगा. As there are two methods to find the flow table of the concrete, which is one is outdated. Here we are explaining the new method of flow table test. As you can see, this is new method of flow table test, and you can see this is the apparatus of metal cone of slump cone is placed here, and here is the tampering rod, here is the handling to be lifted in the flow table, and the mold placed in at the center of the table. Let us see what are the apparatus which is used in flow table test. Flow table test made of a metal having thickness of 1.5 mm and the dimension of 750 mm into 750 mm. Tampering rod is made of hard wooden, then scoop, centimeter scale, metal cone or a mold, lower dia of 20 centimeter, upper dia of 13 centimeter, height of cone is 20 centimeter. As you, this is the thing of these are the values of cone. The middle proportion of the flow table is marked with a concerned circle. This is the middle proportion where we will mark the concerned circle of a diameter of 200 mm, and to place the metal cone in it, onto it, we will place the metal cone, and then a lift hand, and the more detail about the flow table is deducted in the below image. Go through it, it is required. Next, let us see the procedure of the flow table. Prepare the concrete as per the mix design and place the flow table on a horizontal surface. We will place the flow table on a horizontal surface, and then we will see the flowing proportion of the concrete. Clean the dust and or other gritted material on a flow table and sprinkle a hand of water on it. जो है मतलब फ्लो टेबल को साफ़ करने के बाद हाथ से मतलब थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, क्योंकि मतलब उस पर चपके ना. Now place the metal cone at the middle proportion of the floor table and stand on it. जो मेटल है जो फ्लोर टेबल का मेटल कोन है उसको हम लोग सेंटर में फ्लोर टेबल का रखते हैं. Pour the fresh mixed concrete in a mold compressing 2 layers. Each layer should be tempered with a tampering rod of 25 times. After tampering, the last layer should be overflowed concrete on the cone is struck off using trowels. जो होता है हम लोग को मतलब उसमें कोन के अंदर फ्रेश कंक्रीट को भर देना है और उसको मतलब 2 लेयर में भर के उसको कॉम्पैक्ट कर देना है 25 बार उसके अंदर मारते हुए. और इसको करने के बाद हम लोग को क्या करना है, और उसके बाद जब हम उसको भर के मतलब कॉम्पैक्ट कर देंगे और उसका जो टॉप लेयर रहेगा उसको हम लोग चिकना देंगे करनी के थ्रू. स्लोली लिफ्ट द मोल्ड वर्टिकली अप. लेट द कंक्रीट स्टैंड ऑन इट्स ओन विदाउट एनी सपोर्ट. वो अपने से खड़ा हो जाए उस विदाउट एनी सपोर्ट. द फ्लो टेबल इज राइज एट ए हाइट ऑफ 12.5 mm and dropped, and same it is repeated for 15 times in a 15 second. Measure the spread of concrete in a diameter using centimeter scale horizontally and vertically. The arithmetical mean of the two diameters shall be measured of a flow in a millimeter.
जो ये है हम लोग मिलीमीटर के अनुसार से हम लोग उसको काउंट करते हैं, और ये मतलब फ्लो टेबल पे ये ये मतलब 12.5 mm हाइट से वो ड्रॉप होता है। वो जब मतलब ड्रॉप होगा, मतलब 15 सेकेंड में 15 बार जब ड्रॉप होगा तो वो मतलब कंक्रीट है जो वो फैल जाएगा, वो अपना चारों तरफ फैलेगा। वो उसका मतलब पहले का डायामीटर और बाद का डायामीटर को लेंगे, इसके अनुसार से हम लोग फ्लो वैल्यू ऑफ कंक्रीट मेजर करेंगे। किस तरह से d1 + d2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग को मतलब हम लोग को नॉर्मल उसका फैलने का डायमीटर कितना, मतलब वो उसका फ्लो वैल्यू, हम लोग का कंक्रीट का फ्लो वैल्यू पता चल जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। The summary of this lecture is all about fresh concrete. When the concrete is in plastic state, so we called as fresh concrete. जब प्लास्टिक स्टेट में रहता है कंक्रीट, उसको हम लोग फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। प्लास्टिक स्टेट किसको बोलते हैं? जब उसमें इलास्टिसिटी और उसमें चिपचिपापन रहता है, उसी को हम लोग फ्रेश कंक्रीट कहते हैं। और उस फ्रेश कंक्रीट कैन बी इजीली मोल्डेड एंड टू बी ड्यूरेबल स्ट्रक्चरल मेंबर। अगर फ्रेश कंक्रीट रहेगा, अगर उसका अच्छा वर्कबिलिटी रहेगा, तो वो कोई सा भी मतलब तरह से हम लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी ड्यूरेबल रहेगा। रेफरेंस आई हैव रेफर्ड फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, रितु पब्लिकेशन बुक, MS Sethi book. Thank you for listening this lecture. If you have any doubt, you can message me or mail me. Thank you.